Hello student, Hemant Sir is here. Today we are going to start the new chapter of our syllabus of class 12th chemistry. So today we are going to start the organic chemistry. As you know, we have divided our chemistry into three basic parts. One is organic chemistry, then inorganic chemistry, and then physical chemistry. So we are going to start the first chapter of our organic chemistry called halogen derivatives. So in halogen derivatives, the word halogens means what? We have to understand first what are halogens. So we know halogens are. So what are halogens? The element of group 17. Group 17 elements are called as halogens. Why halogens? Because they forms halide. They form halides. For example, we have NaCl. See, this chlorine is from the halogen family. That means they are from group 17. So here chlorine is nothing but the group of halogen, or we can say chlorine is the member of halogen. So we can say this NaCl as sodium chloride. sodium chloride. So chloride के end में जो name आ रहा है that ends with IDE. IDE, that is we can say halogen as the halides. Okay. So chlorine will form chloride, fluorine will form fluoride, bromine will form bromide, iodine will form iodide, and so on. Okay, so we can say the elements of group 17 are called as halogen because they form halides. What are halogens? The elements of group 17 are called as halogen and they form halides. Okay, that's why they are called as halogens. And halogens are represented by capital X. They are represented by capital X, where X may be fluorine, then chlorine, or maybe bromine or iodine, etc. Okay, so X is nothing but halogen. Okay, so to remember these names, of the elements of group 17, we have one tricky part that you have to understand. फिर कल बाहर आई आंटी. दैट इज फिर कल बाहर आई आंटी. सो फिर में हमने ले लिया F, फ्रॉम कल से हमने ले लिया Cl, फ्रॉम बाहर हमने ले लिया Br, एंड I का I एंड आंटी का हमने ले लिया At. ओके, सो F stands for fluorine, Cl stands for chlorine, Br stands for bromine, then I stand for iodine, At stand for acetylene. Okay, so by remembering this tricky part, we can remember all the elements. So now we have to understand how to remember their atomic numbers. So we know atomic number of fluorine is 9. So just add 8. Here we are adding 8. So 8 plus 9 is 17. 8 plus 9 is 17. Then add 18. So 18 plus 17 is 35. So atomic number of bromine is 35. Then again add 18. Atomic number 53. एंड इसका हो जाएगा 53 के बाद हो जाएगा 85. ये हो जाएगा 85 बिकॉज आफ्टर दैट वी हैव टू ऐड 32. सो इट इज 9 plus 8 17, 17 plus 18 35, 35 plus 18 53, and 53 plus 32 is
85. So these are the elements that you have to remember. So the first member of halogen is fluorine, then chlorine, bromine, iodine and acetylene. Okay, so these are called halogens. Okay, so write down this tricky part. So let's quick review about halogens. So what are halogens? Halogens are the elements of group 17 and they form halides. And halogens are represented by capital X. They represent by capital X, where X equals to maybe fluorine or chlorine, bromine, iodine, acetylene, etc. इनमें से कोई भी एलिमेंट हो सकता है if we will consider X. Okay, so we know these elements belongs to group 17. अब group 17 that means इनके आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे? 7 रहेंगे. कितने रहेंगे? 7. बिकॉज नंबर ऑफ ग्रुप रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम. सो ये जो 17 है ये ग्रुप का नंबर हो गया. एंड 17 में जो 7 है दैट इज द यूनिट प्लेस डिजिट विच स्टेट्स which represent the number of electron present in their outermost shell. That means जितने भी हमारे हेलोजन फैमिली के मेंबर हैं उनके outermost shell में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 7 इलेक्ट्रॉन्स. So हम कह सकते हैं this is the nucleus of an atom and these are the different shell. So इनकी जो outermost shell रहेगी that is n cell. outermost shell की बात कर रहे हैं. यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे? 7 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे. अब 7 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे. सो ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग, ऑक्टेट रूल क्या कहता है? एनी एलिमेंट या एवरी एलिमेंट मस्ट हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल. कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए. बट इनके आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है. सो क्या करेंगे हेलोजन फैमिली? दो कंडीशन होगी. एक कंडीशन क्या होगी कि या तो ये एक इलेक्ट्रॉन किसी से एक्सेप्ट कर ले, तब 7 इलेक्ट्रॉन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन. क्या करेंगे? अगर वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं तो ये हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन और उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा. या फिर ये 7 के 7 जो इलेक्ट्रॉन है इसको लूज कर दे. इसको क्या करें? लूज कर दे. सो इलेक्ट्रॉन को लूज करना विल रिक्वायर मोर एनर्जी फॉर हेलोजन्स. दैट्स व्हाई हेलोजन्स क्या करेंगे? एक इलेक्ट्रॉन को इजीली गेन करेंगे. दैट्स व्हाई हेलोजन क्या करेंगे? एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे और इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद दे फॉर्म हेलोजन नेगेटिव आयंस. दे फॉर्म हेलोजन नेगेटिव आयंस. अब ये है नेगेटिव आयन किसी भी पॉजिटिव आयन के ऊपर अटैक करके बॉन्ड फॉर्म करेगा एंड विल फॉर्म कंपाउंड. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट हेलोजन्स. Okay, so now we will understand halogen derivatives. Okay, so write down this tricky and quick part. Now we will understand halogen derivative. So before going to start halogen derivative, we have to understand about hydrocarbons. So what are hydrocarbons? So hydrocarbons. So you have already understood in your previous classes about hydrocarbons. So हाइड्रोकार्बन एक्चुअल में क्या है? अगर हमने इस हाइड्रोकार्बन जो वर्ड है इसको अगर ब्रेक डाउन किया, सो एक्चुअल में ये हाइड्रो और कार्बन से मिलकर बना हुआ है. सो हाइड्रो रिप्रेजेंट्स हाइड्रोजन एंड दैट इज कार्बन. सो hydrogens are the compounds, they are mainly formed by carbon and hydrogen, or hydrogen and carbon are called as hydrocarbons. Other elements may be included like oxygen present हो सकता है, nitrogen present हो सकता है ना. Other elements may also be present along with hydrogen, but mainly hydrocarbons are formed by hydrogen and carbon atom. Okay, so अब हम क्या करेंगे? हाइड्रोजन सपोज हमने ले लिया, द बेसिक हाइड्रोकार्बन इज मीथेन, दैट इज CH4. ये क्या है? मीथेन है. यहाँ पर जो कार्बन एक्चुअल में क्या है? टेट्रावेलेंट है जो 4 हाइड्रोजन एटम से बॉन्डेड रहेगा. क्या होगा? कार्बन इज अ टेट्रावेलेंट एलिमेंट विच इज कंबाइंड विथ 4 डिफरेंट हाइड्रोजन एटम इन
मीथेन, मीथेन की बात कर रहे हैं। सो अब मीथेन की बात कर रहे हैं, दैट इज मीथेन, ओके, एंड दिस इज फॉर्मूला इज CH4। ये क्या है? CH4, दैट इज द मीथेन, और उसका ये हो गया स्ट्रक्चर। अब हम क्या करेंगे, हमको हेलोजन की डेरिवेटिव चाहिए, किसका? हाइड्रोकार्बन्स की बात कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, इस हाइड्रोकार्बन में से वन और मोर हाइड्रोजन एटम को अगर हम रिप्लेस करेंगे किससे? हेलोजन एटम से, तो हम उसको बोलेंगे हेलोजन डेरिवेटिव। क्या बोलेंगे उसको? हेलोजन डेरिवेटिव। सपोज हमने ले लिया मीथेन, हमने ले लिया मीथेन। अब मीथेन को हमने क्लोरीनेशन करवाया, हमने करवाया क्लोरीनेशन, दैट मीन्स हमने यहां पर क्लोरीन गैस सप्लाई की, क्लोरीन गैस सप्लाई किया, ओके। सो यहां पर एक क्लोरीन और ये हाइड्रोजन मिलकर क्या फॉर्म करेंगे? हाइड्रोजन क्लोराइड, और हाइड्रोजन क्लोराइड क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ये बाहर गैसेस के फॉर्म में रिमूव हो गया। अब क्या बच गया? CH3 एंड Cl। क्या बन जाएगा? इट इज CH3 एंड Cl। तो ये बन गया क्लोरोमीथेन। ये क्या बन गया? क्लोरोमीथेन। तो यहां पर क्या हुआ एक्चुअल में, हाइड्रोकार्बन से हमने वन, अब यहां पर हमने वन किया है, अगर हमने बहुत ज्यादा एक्सेस में क्लोरीन गैस अगर लिया है तो ये डाइक्लोरो, ट्राइक्लोरो एंड टेट्राक्लोरो तक ये फॉर्म कर सकता है, ओके। सो यहां पर एक्चुअली हुआ क्या है, ये जो क्लोरीन है इसने इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके खुद बॉन्ड फॉर्म कर लिया है। सो ये जो नया कंपाउंड है ये हो जाएगा हेलोजन डेरिवेटिव, किसका? हाइड्रोकार्बन्स का। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन्स। सो हम बात कर रहे हैं अल्केन्स की। सो अल्केन का जनरल रिप्रेजेंटेशन हमने इसके पहले एग्जांपल देखा था मीथेन का। सो मीथेन क्या है? CH4। ये क्या है? CH4। अब CH4 में से अगर हमने, ये क्या है? अल्केन है, तो हम इसको ऐसा लिखेंगे अल्केन। अब अल्केन में से हमने एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, तो हम इसको माइनस हाइड्रोजन, देखो हाइड्रोजन यहां से क्या हो रहा है? रिमूव हो रहा है। सो ये अल्केन को हम बोलेंगे अल्काइल। क्या बोलेंगे? अल्काइल। और हम अल्काइल ग्रुप को R बॉन्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। R बॉन्ड, दैट मीन्स यहां पर एक हाइड्रोजन हमने रिमूव कर दिया, सो एक कार्बन की वैलेंसी कम हो जाएगी और ये एक फ्री रेडिकल के समान वर्क करेगा, ओके। और हम इसी को बोलते हैं अल्केन कन्वर्ट्स इनटू अल्काइल। अब हम देखेंगे हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन्स। सो हम इसको ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अल्केन्स मींस RH, RH में से हमने H को रिमूव किया, हमने क्या किया यहां पर H को रिमूव कर दिया, तो ये क्या फॉर्म हो गया? R बॉन्ड। अब ये अल्केन बन गया अल्काइल। अब ये अल्काइल विल कंबाइंस विथ क्लोरीन, देखो यहां पर क्लोरीन क्लोरीन है, तो ये वाला हाइड्रोजन जो रिमूव हुआ है इस क्लोरीन से बॉन्ड फॉर्म करेगा और ये क्या बना लेगा? माइनस HCl, ये बना लेगा हाइड्रोजन क्लोराइड, और ये अब R इस क्लोरीन से रिएक्ट करेगा और फॉर्म करेगा RCl। सो ये क्या फॉर्म हो गया? इट इज अल्काइल क्लोराइड, दैट इज अगेन नथिंग बट द हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन, ओके। सो दिस इज नथिंग बट अल्काइल एंड इट इज क्लोरीन को हो जाएगा क्लोराइड, क्योंकि हमने बोला है हेलोजन क्यों नाम दे रहे हैं, क्योंकि ये हैलाइड फॉर्म करता है। तो हो गया अल्काइल हैलाइड। दिस इज, ये जो अल्काइल हैलाइड है ये इसका कॉमन नेम है, अदरवाइज इसका IUPAC नेम होगा हेलो अल्केन। इसका IUPAC नेम क्या होगा? हेलो अल्केन। So this is from IUPAC and this is the common name. Okay, अब हम इसको डिफाइन करेंगे, ओके। सो एक्चुअल में हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन क्या होगा? When वन और मोर, हम बात कर रहे हैं एक या एक से ज्यादा क्या हाइड्रोजन एटम को हमने रिप्लेस किया, और हमने क्या फॉर्म किया है? रिप्लेस करने के बाद किससे रिप्लेस किए? हमने हेलोजन एटम से फॉर्म रिप्लेस किए। तो हेलोजन एटम जब रिप्लेस करेगा किसको? हाइड्रोजन को, तो वो फॉर्म करेगा अल्काइल हैलाइड, ओके। सो दैट इज नथिंग बट द हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन।
सो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, व्हेन वन और मोर हाइड्रोजन एटम ऑफ अल्केन्स, व्हेन वन और मोर hydrogen atoms of alkanes are replaced by corresponding halogen atoms are called as alkyl halide or nothing but the halogen derivative of alkanes. Okay, so यहाँ पर जो definition दिख रही है आपको ये note down करना है. So what are halogen derivative of alkane? When one or more hydrogen atoms are replaced by corresponding halogen atoms are called as halogen derivative of alkanes. Okay, example. So this is RH. That is alkane. That is alkane. And X2 यानी halogen like chlorine, fluorine, bromine, iodine हो सकता है. So that is halogen. Okay, when they will react, they form HX. HX बाहर निकल गया, यहां से H और यहां से X. अब क्या बच गया? That is RX. So RX क्या हो जाएगा? It is halogen derivative of alkane. हम इसको हेलो अल्केन एज अ आईयूपीएसी नेम और अल्काइल हैलाइड भी बोल सकते हैं, और अल्काइल हैलाइड. ओके, एंड दैट इज हाइड्रोजन हैलाइड. Okay, so this is the general example. Now you can write infinite example if you want. Okay, suppose R की वैल्यू हमने कार्बन की वैल्यू 1 रखी, तो ये हो जाएगा CH3 और ये हो जाएगा H. That is CH4, यानी हम मीथेन की बात कर रहे हैं. हमने इसको X के बदले हमने ले लिया क्लोरीन गैस, तो क्लोरीन गैस से रिएक्ट करवाया. सो क्या फॉर्म करेंगे? RX, R यानी CH3, R यानी CH3 और X के बदले हमने क्या लिए? क्लोरीन, से हो जाएगा क्लोरीन. और बाहर क्या निकल गया है? HX और X के बदले में क्या है? क्लोरीन, से फॉर्म कर लेगा HCl. तो ये क्या हो गया इसका नेम? मीथेन. ये है क्लोरीन, क्लोरो मीथेन, या इसी को हम मिथाइल क्लोराइड भी बोल सकते हैं. मिथाइल क्लोराइड और ये हाइड्रोजन क्लोराइड. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल. नाउ यू कैन राइट CH3 CH2Cl और यू कैन राइट CH3 CH2Br. हमने लिख लिया CH3Cl, अभी जस्ट हमने लिखा है दैट इज क्लोरोमीथेन. हमने ले लिया CH2Cl2 दैट इज डाइक्लोरोमीथेन. फिर हमने ले लिया CHCl3 इट इज ट्राइक्लोरोमीथेन. आपको नाम भी लिखना है साथ साथ, मैं बोल रहा हूं आपको वीडियो पॉज करके लिखते जाना है. हम सभी के नाम लिखकर लेंगे तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, है ना. तो जैसा मैं बोलते जा रहा हूं वीडियो पॉज करके उनके नेम्स लिखते जाना है. ओके, सो इट इज क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन एंड CCl4 दैट इज टेट्राक्लोरोमीथेन. इसका आईयूपीएसी नेम के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है जो आपको हमारे YouTube चैनल पर आपको इसको वीडियो मिल जाएगा. ओके, सो दिस इज द एग्जांपल्स ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन्स. सो अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स. ओके, सो राइट डाउन दिस पार्ट. सो स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.